We will start the celebration with flag hoisting. We would like to request our chief guest, Dr. Nishi Gupta, guest of honor, Mohammad Shafi Qureshi, Parshad, Ward number 87, Nagar Nigam Heritage, our principal, Reverend Sister Rosalind, manager, Reverend Sister Lavita, vice principal, Reverend Sister Lavina, primary in charge, Reverend Sister Juliana, and Ma'am Sharmila Das to come ahead for flag hoisting. Every battle fought for the goodwill has resulted in revolution. And this is how we attain the fresh air of freedom. Our freedom fighters left no stone unturned for the independence that we now enjoy. We at Sophia take immense pride in stating that our school stands on the same foundation of revolution, led against the staunch patriarchy that bonded and chained countless women. Sophia breathes on the ideals of freedom as it gave wings to the women who were neglected a place in the society. A tryst with destiny was made in the year 1947, a dream come true moment to see the flag unfurl in the free land of India. And a tryst with destiny was made in the year 1926, when the founders of the institution gave the opportunity to redeem and nurture the education that all individuals deserve. Sophia believes that education is the most powerful weapon to be successful in life. Sophia has fabricated progenies of revolutionaries who have made Sophia a place to breathe freely and fearlessly. We at Sophia commemorate all the civilians who bravely laid down their lives for the dream of independence they saw and we live in. On this auspicious day, we begin with reading from Holy Scripture followed by prayers and petitions. Reading from the Holy Bible, Psalms chapter 33, verses 12 to 22. Blessed is the nation whose God is the Lord, the people he has chosen as his own inheritance. The Lord looks from heaven, he sees all the sons of men. From the place of his dwelling, he looks on all the inhabitants of the earth. He fashions their hearts individually, he considers all their works. No king is saved by the multitude of an army. A mighty man is not delivered by great strength. A horse is a vain hope for safety, neither shall it deliver any by its great strength. Behold, the eye of the Lord is on those who fear him, on those who hope in his mercy. Our soul waits for the Lord. He is our help and our shield. For our heart shall rejoice in him, because we have trusted in his holy name. Let your mercy, O Lord, be upon us, just as we hope in you. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Heavenly Father, as we celebrate our 76th Independence Day, we beseech Thee for the showers of blessings on our motherland to overcome the challenges of poverty, inequality, unemployment and corruption. Lord, help each citizen of our country to contribute in the welfare of the nation. May the people of our country
unanimously resolve the challenges faced for the peace and harmony. For this we pray. Into that heaven of freedom, my Father, let my country away. Almighty Father, we pray for all the leaders of our country to serve the nation selflessly. Grant them the vision of truth and justice. Guide them to make qualitative decisions for the betterment of the citizens, as well as the progress and prosperity of the nation. For this we pray. Into that heaven of freedom, my Father, let my country away. Eternal and ever-loving Father, we pray for our country and our countrymen. Help us to preserve the hard-earned sovereignty and value the democratic principles by following the ideals of equality, liberty, and fraternity. Lord, grant wisdom to each citizen to strive for excellence and may reach the country to the zenith of success. For this we pray. Into that heaven of freedom, my Father, let my country away. We are celebrating our 76th Independence Day this year, a day full of patriotism and enthusiasm. To enhance this feeling of enthusiasm and patriotism, we invite students of primary section to present their patriotic song. जीते हो किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। कितने पावन हैं लोग जहाँ, कितने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ऐसी जहाँ की जीत सदा मैं जीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ।
रहे तू, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, दो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, दो सुर बने हमारा। फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ के की नहीं जाती। इन्हीं सुविचारों को प्रस्तुत करने हेतु मैं कक्षा 10वीं की छात्रा श्रुति शर्मा को आमंत्रित करती हूँ। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। नमस्कार, मैं श्रुति शर्मा इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी के समक्ष अपने सपनों के भारत की एक झलक प्रस्तुत करती हूँ। मेरे सपनों का भारत अपने प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा, सबका साथ, सबका विकास एवं विश्वास वाला हो। बिना किसी भेदभाव के अपनी पूरी क्षमता व योग्यता के साथ स्वयं, समाज व देश के विकास में सहभागी बनने का अवसर देगा। जहाँ किसी बच्चे को भीख न मांगनी पड़े, गरीबी से मुक्त हो मेरा भारत। जहाँ कोई व्यक्ति भूखमरी से ग्रस्त ना हो, सभी को शिक्षा का समुचित अवसर मिले, बेरोजगारी एवं महंगाई से पूर्णतः निजात मिले। जहाँ रोजगार के असंख्य अवसर अपनी क्षमता, योग्यता व रुचि के हिसाब से मिले। भय तथा आतंकवाद से उन्मुक्त हो, किसी भी अपराध से, लैंगिक असमानता से, दहेज हत्या से मेरा देश कोसों दूर रहे। मेरा भारत विकासशील राष्ट्र से विकसित देश में परिवर्तित हो। दुष्कर्म जैसे कलंक से जो मानवता के खिलाफ अपराध है, अब हमें मुक्ति चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि यथार्थ के धरातल पर इसे साकार भी किया जाए। आरक्षण आवश्यकता आधारित है, जाति आधारित नहीं। दलितों, शोषितों, वंचितों को पढ़ने का पूरा अवसर दिया जाए। मेरा भारत शेष विश्व से अपनी बात गर्व से कह सके, कदम से कदम मिलाकर चले। डिजिटल इंडिया, मेड इन इंडिया, स्वच्छ भारत, आत्मनिर्भर भारत, सामर्थ्य भारत को दुनिया में उसका उचित सम्मान मिले। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो कि पड़ोसी देशों के नागरिक भी अगले जन्म में भारतीय बनने का सपना दें। अंत में मैं अपनी बात को दुष्यंत कुमार जी की पंक्तियों से विराम देना चाहूँ। हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग मगर जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेरे, वतन पर मर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। इसी उक्ति को चरितार्थ करते ऐसे ही एक नौजवान देशभक्त पर आधारित नाटिका, जिसने अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में जरा भी संकोच नहीं किया। उन्होंने अपने परिवार से ऊपर अपने देश प्रेम को रखा और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए।
राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर बिस्मिल आजाद हुए। मिलकर खेली खून की होली, मुल्क की खातिर खाक हुए। पराधीन भारत स्वतंत्र हो, काम यही बस होता था। नहीं कहानी ये सच में एक सिंह भगत सिंह होता था। नहीं कहानी ये सच में एक सिंह भगत सिंह होता था। पराधीन भारत में जब अंग्रेजों के अत्याचार व जुल्म अधिक बढ़ गए, तब 27 सितंबर 1960 को एक ऐसे वीर क्रांतिकारी बालक का जन्म हुआ जिसने अपना नाम सुनहरे अक्षरों में भारत के इतिहास में अंकित कर दिया। यह बालक उस वक्त कुछ ऐसा कर गुजरा जिसे आज की पीढ़ी, आप और हम बड़े गर्व के साथ याद करती हैं। मैं भगत सिंह हूँ। मुझे मेरे भारत देश को इन अंग्रेजों से आजाद करवाना है। कौन है ये अंग्रेज? आखिर क्यों आए हमारे भारत देश में? इन्होंने हमारे पूर्वजों को क्यों मारा? क्या कसूर था उनका? वे तो बस हमारे भारत देश से इन अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहते थे। देखते ही देखते समय बीतता चला गया। अंग्रेजों के जुल्म भारतवासियों पर बढ़ते चले गए। वो नन्हा बालक अपने मन में उमड़ते सवालों को और दुखों को लिए हुए युवावस्था में प्रवेश कर गया। सुखदेव, अब आगे क्या करना है? अब वक्त आ गया है देश को जागृत करने का और क्रांति की लहर जगाने का। सुखदेव, अरे सुखदेव, कुछ सुना तुमने? और एक लड़का जिसने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा है और अंग्रेजों को भगा भगा कर मार रहा है। अच्छा, कहाँ पर? चलो मैं तुम्हें वहां लेकर चलता हूँ। Follow me, friends. तुम्हें अपने ओएम का लगान देना है। कहाँ है लगान? ये रहा साहब। Give it here. Next. साहब, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पर रहम करें। I don't care. You have to give. साहब, ये लीजिए मेरी पगड़ी में। रुको चाचा, ये क्या कर रहे हो? आप अपनी पगड़ी ही नहीं बल्कि अपना आत्मसम्मान भी अपने इनके कदमों में रख रहे हो। आप ऐसा कोई भी काम न करो जो आपको आपकी ही नजरों में गिरा दे। हाँ चाचा, भगत ठीक कह रहा है। हमारे रहते हुए आपको अपनी इज्जत इन गोरी चौड़ी वालों के पैरों में रखने की कोई आवश्यकता नहीं। ओह व्हाट नॉनसेंस! अब वो दिन दूर नहीं जब हम हमारे देश के तुम्हें खदेड़ देंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! कोई है? मुझे भगत से मिलना है। हाँ बोलिए, क्या काम है? वो तो मैं उनको ही बताऊंगा। जी कहिए, मैं ही भगत सिंह हूँ। क्या काम है? आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुझे पंडित जी ने भेजा है। वे चाहते हैं कि आप मुझे अपनी पार्टी में शामिल कर लें। वैसे नाम क्या है तुम्हारा और हमारी भी पार्टी में क्यों शामिल होना चाहते हो? मेरा नाम राजगुरु है। मुझे अपनी भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से आजाद करवाना है। इसके लिए मैं बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकता हूँ। बस आप जैसे साथी मिल जाएं तो। मेरे दोस्त, जब अंग्रेज पुलिस के डंडे पड़ेंगे तो सारी अकड़ ढीली पड़ जाएगी। जिस राह पर तुम चलना चाहते हो वो राह कांटों से भरी है। क्या चल पाओगे उस राह पर? मैं भारत माँ का बेटा हूँ। वो दिन कभी नहीं आएगा जब माथे पर कायरता और गद्दारी का कलंक लगे। जननी का वीर पुजारी हूँ, सर्वस्व लुटाने वाला हूँ। मैं मातृभूमि का सैनिक हूँ, आजादी का मतवाला हूँ। इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! मित्रों, अरे मित्रों, तुम्हें पता है अंग्रेजी सरकार द्वारा किए गए लाठीचार्ज में हमारे लाला लाजपत राय शहीद हो गए और अब इस कारण से भगत सिंह का जुनून अपने देश के प्रति और भी बढ़ गया है। हाँ, मुझे मालूम है। अब वे तीनों चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर बम बनाना सीख रहे हैं और उसे अंग्रेजों की रैली में फोड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। भगत, अब हम
दिया है। अब हमें कोई योजना बनानी पड़ेगी। हमारी पार्टी का मकसद खून खराबा नहीं है, बल्कि देश की आजादी है। ये बना कैसे संभव है? हमें अंग्रेजों की असेंबली में बम फोड़कर खुद को गिरफ्तार करवाना होगा। लेकिन सुखदेव, एक बात का ध्यान रहे, हमें असेंबली में ऐसी जगह बम फोड़ना है जहां किसी को हानि ना हो। इस तरह से हम अपनी बात जनता तक पहुंचा पाएंगे। अब देश की जनता को जगाने का समय आ गया है। हाँ, अब बड़ा धमाका होगा जिसकी गूंज भैरी अंग्रेजी सरकार के कानों तक अवश्य पहुंचेगी। अब बड़ी क्रांति होगी। हाँ हाँ, अब बड़ी क्रांति होगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और उसके बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने असेंबली में ऐसी जगह बम फोड़े जहां किसी को हानि नहीं हुई। भारत माता की जय, भारत माता की जय। राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव हाजिर हो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। Order. Shall we proceed the case, my lord? Yes, proceed. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। What do you mean by this इनकलाब, इनकलाब? Every time इनकलाब। इनकलाब एक लड़ाई है जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ। इनकलाब एक हथियार है आदमी का आदमी पर शोषण रोकने के लिए। इनकलाब एक ऐलान है भारत के नौजवानों को एकजुट करने के लिए। बस बस, अब समझ गया इस इनकलाब का मतलब। यदि समझ ही गए हो वकील साहब इनकलाब का मतलब, तो आप भी आ जाइए ना हमारे साथ। Order. Stop this nonsense. Come back to the issue now. माय लॉर्ड, इन तीनों क्रांतिकारियों ने हमारा असेंबली में बम फोड़ा है और ये एक कानूनन अपराध है, अपराध। ये सब हिंदुस्तानी इनके ही भड़काए हुए हैं माय लॉर्ड, इनके ही भड़काए हुए हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों इस केस के जिम्मेदार हैं और इन तीनों को ही धारा 302 के तहत फांसी की सजा होनी चाहिए माय लॉर्ड, फांसी की सजा। अब देश प्रेम की रंगत में रंग गया हमारा यह जीवन, उसके लिए समर्पित है सब कुछ अपना तन मन धन। वंदे मातरम, वंदे मातरम। Order. भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, hang till death. Now the court is dismissed. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भगत, ओ मेरे पुत्र भगत, कहाँ है तू? भगत मेरे पुत्र, ये तो सिद्धि कर देता। माँ, तुझे तो खुश होना चाहिए कि आज तेरा बेटा भारत माँ के लिए कुर्बान होने जा रहा है। तेरे मेरी याद नहीं आई, मेरा ख्याल नहीं आना, मुझे तू की कितना। आई माँ, तुम्हारी एक रूप में मुझे भारत माँ की याद आई। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे भारत माँ के आंचल को गंदा करे। ऐसा तुझे बदतमीजी क्यों करनी थी पुत्र? किसी को तो करनी ही थी माँ। आज तेरा एक भगत जा रहा है, कल 100 भगत आएंगे। शाबाश मेरे पुत्र, तुझे मेरा सिर गंगा लूचा कर देता। जो मेरे पुत्र, जो मेरे। The time is over, come back. मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 आए रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां। खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का डोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। यारों, आखिरी बार गले तो मिल लो। भारत के इतिहास का वह काला दिन आखिर 23 मार्च 1929 को आ ही गया।
जब तीनों नौजवान भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटकाने का समय आया था। भगत सिंह, तू हंस रहा है, तुझे तो फांसी होने वाली है। इस उम्र में नौजवान ड्रीम्स देखता है और उन्हें पूरे करने की कोशिश करता है। सपना तो मैंने बचपन में ही देख लिया था। ये मिट्टी ही मेरा मकसद। ये कोई आम मिट्टी नहीं, ये जलियांवाला बाग की मिट्टी। इस मिट्टी में मेरे देशवासियों का खून बसा हुआ। मेरा सपना, मेरा मकसद इस मिट्टी को आजाद करवाना है। क्या तुम्हारी कुर्बानी भारत को आजाद करवा पाएगी? हम मातृभूमि के सैनिक हैं, आजादी के मतवाले हैं, बलि वेदी पर हंस हंस करके निज शीश चढ़ाने वाले हैं। ओह शर्म, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। अंग्रेजों ने क्रांति की जिस चिंगारी को दबाने की कोशिश की, वह दावानल बनकर समूचे भारत में फैल गई। एक भगत के बदले करोड़ों भारतवासी अपनी मातृभूमि की बलिवेदी पर चढ़ने को तत्पर थे। उस समय की युवा शक्ति ने अंग्रेजों के पांव भारत से उखाड़ फेंके और हमें आजादी का नायाब तोहफा दिया। और आज भी यह देश वीरता, बलिदान और देश की आन बान शान पर मर मिटने वालों का देश है। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। जय हिंद, जय भारत। Our nation's way of life and ethnicity is something we identify throughout our lives with our culture and tradition. To add more colors and reverence to our country, we have students from middle section to perform a dance. यहाँ कोई माने ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा, थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हम नाज है। जाने ना हमको ये ज़माना, चाहो तो
our principal, Reverend Sister Rosalind, to express her thoughts for the day. Dear sisters, teachers, and students, good day to you. Today we celebrate the independence of our beloved nation. 75 years ago, our nation breathed the fresh air of freedom from foreign rule. On this day, we recall to our minds with gratitude the sacrifices of millions of sons and daughters of this country who waged a determined struggle for freedom, guided by the principles of truth and non-violence. As we rejoice with the entire nation, we remember and pray for those known and unknown persons who spent themselves for the freedom of this great nation. We also remember the soldiers who keep vigil on the line of control and the soldiers who have shed their blood and given up their life for the country in the recent years. Our nation achieved freedom because our leaders believed it was possible. Our nation can continue to exist in freedom only as long as that faith remains strong in each of us, in each citizen. We have achieved freedom from foreign power, and yet we are still not free. Not free from internal bondages, illiteracy, child labor, dowry system, caste system, parda system, poverty, etc. The list of bondages are many. As we celebrate our 76th Independence Day, let us resolve to wage war against these evil forces and to dispel them from our country. I shall sing few lines of a hymn through which we shall surrender our lives at the feet of our God and our King to work for His kingdom, a kingdom of peace, justice, and brotherhood. To follow the Lord and find freedom, to love as He loved and bring peace, to spend a lifetime for His kingdom, to want it to grow and increase, to walk hand in hand with each other, to share with the burdens they bear, to comfort the people who suffer, to help those in need for no gain, to follow the Lord and find freedom, to love as He loved and bring peace, to spend a lifetime for His kingdom, to want it to grow and increase. I wish each one of you a very happy Independence Day. God bless you. Vande Mataram. Thank you, sister, for your words of inspiration. I would like to conclude by saying the preservation of freedom is not just the task of soldiers alone, but the whole nation has to be strong. Wish you all a very happy 76th Independence Day. Jai Hind, Jai Bharat.